शुरू करते हैं while लूप। किसी को याद है अननोन रिपीटेशंस में हमने कुछ खास डिक्लेरेशंस की थी कि अननोन रिपीटेशंस में वी डू नॉट नो दैट हाउ मेनी टाइम्स रिपीटेशन इज टू बी डन, बट वी नो when to stop. So it means we only know the condition to stop the program. From where it will be started, from up to when it will go, we do not know. We simply know when to stop, right? So the syntax of while loop is we write while and we write condition here. Yes. So with while we write a condition. Now what is special about this condition? If this condition is true, loop will be continued. Continued means will keep on repeating. When this condition is false, loop will stop. Is that okay? If condition is true, loop will repeat. If condition is false, loop will stop. Okay? Now how do we write it? Let's write the syntax of it. You know the meaning of syntax? Method of writing statement. We write while and condition colon, then here we write statements to be repeated. So this is the simple idea. Okay. while loop में मोस्टली हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सॉल्व करते हैं, और हम इसमें कई सारी नए नए तरह के नंबर्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो जो पहला प्रोग्राम मैं इससे शुरू कर रहा हूँ आप लोगों का, वो वही एग्जाम्पल है जो मैंने पहले दिया था आपको कि राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट नंबर्स फ्रॉम यूजर until user enters a 0. ओके, सो ध्यान ही प्रोग्राम दिया था मैंने आप लोगों को, प्रोग्राम नहीं दिया था, ये समझाया था। ओके, कैन यू टेल मी हाउ मेनी नंबर्स यूजर विल एंटर? इट्स नॉट इनफाइनाइट, इट्स ऑन द चॉइस, बिकॉज वी हैव टू इनपुट नंबर्स फ्रॉम द यूजर अंटिल ही एंटर्स अ 0. सो कितने नंबर एंटर करेगा मालूम नहीं, कब रुकेगा ये पता है, जैसे ही 0 आया रुक जाएगा। ओके, सो अब यहाँ पे रिपीट कौन सी प्रोसेस करनी है हमको? नंबर मांगने की प्रोसेस, नंबर मांगने की प्रोसेस को रिपीट करना है। तो हमने एक नंबर ले लिया, ठीक है, 0, और यहां पे लिखा while number is not equal to 0. ऑलराइट, और यहां पर मैंने लिखा n is equal to int input enter number, और मेरा प्रोग्राम खत्म हो गया एक गलती के साथ। वो गलती निकालते हैं क्या है, वही समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ इसमें। n की वैल्यू कितनी है, और while के साथ लिखी हुई कंडीशन करेक्ट है कि रॉन्ग है? जो while के साथ मैंने कंडीशन लिखी है, इज इट ट्रू और फॉल्स? अभी फिलहाल कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है? कंडीशन इज फॉल्स। व्हाई? Because it is saying n is not equal to 0, n itself is 0. Can we write 0 not equal to 0? No, sir. So it's false. Since it is false, so will this loop be continued? It means will this loop accept numbers? No, sir. No. So there will be no happening. Nothing will be done. Now, I am giving some any other value to n
I am giving some any other value to n. Now this condition is correct while number is not equal to 0. Yes, sir. Will while loop be executed? It will pick the number. For example, user has entered 83. Okay, what has been done? The condition is true. We will be allowed to enter inside the loop. तो दिख रहा है बेटा वहां से? Then we have entered 83. अब यहाँ से फिर वापस चली गई क्योंकि ये लूप है, चलता रहेगा ये तो. Now 83 not equal to 0. Is this condition correct? 83 because the value of n is 83 now. Yes. Is it not equal to 0? Yes, sir. Condition still true. फिर से नीचे आ गया. इस बार यूजर ने दिया 89. फिर से कौन सी वैल्यू लेके गया वापस ये? 89. 89 नॉट इक्वल टू 0. Yes, sir. अब की बार 3 दिया यूजर ने, तो यहाँ से ये कौन सी वैल्यू लेके गया? 3. इज इट नॉट इक्वल टू 0? Yes, sir. अब की बार यूजर ने 45 दिया, यहाँ से फिर 45 लेके ऊपर गया ये. Yes, sir. स्टिल ट्रू. नाउ यूजर हैज गिवन 0. फॉल्स. एग्जीक्यूशन बंद, काम खत्म. तब भी false. 10 is not equal to 0. Is that okay? Now my point is, if we have to find out how many numbers have been entered, what can I do? Because this program is showing nothing. It is accepting numbers and doing nothing with the numbers. How can we say so? Because we are taking numbers and those numbers are not actually being used. If we have to count how many numbers have been entered, for this particular example, 1, 2, 3, 4 and 5, 0 is also a number which has been entered. So if we have to count that how many numbers have been entered, do we need to take an extra variable count here? That will be initially 0. Because if we have to do counting, we have to take an extra variable. Okay. Now what is to be done to count how many numbers have been entered? When we are accepting numbers, we have to count them as well. So we'll say count is equal to count plus 1. And when user has entered all the numbers, then we can show in the same indent of while, print count numbers have been entered. Is that okay? Any doubt in this? 10 क्यों लिया? Any number except 0. So I'm writing here, n can be any number except 0. Okay? Can we have it 100? I have written n can be any number except 0. So can it be 100? Yes. Can it be minus 2? Yes, sir, can be. So except 0 because we are stopping at 0. So we are not supposed, जब हमें बोल दिया गया है कि अगर लाल कपड़े पहन के आओगे तो होटल में नहीं घुसने दिया जाएगा, और कोई लाल पहन के आएगा तो घुसने दिया जाएगा उसको? नहीं, मना कर दिया. अब उसको कौन सा रंग पहनना है? कोई भी पहनो, बस लाल नहीं होना चाहिए. सिमिलरली यहाँ पे भी 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी नंबर हो सकता है. Is that okay? Can anyone tell me what changes will be there if I have to find out sum of all entered numbers? If I have to find out sum of all the numbers, with counting we have to find out sum of all the numbers also. What is the statement to do sum? I have told you a statement. Whenever you have to do sum, you have to write a statement to do sum. That is sum is equal to sum plus जिसका sum करना है. किसका sum करना है? n का sum करना है.
Okay, then we can write one more print. Sum of entered, हाँ, accumulate होता रहता है ये. Sum is equal to sum plus n. All right. Can you find out how many even numbers have been entered? How many even numbers have been entered in this whole process? ये तुम्हें करना है. Count how many even numbers have been entered. कैसे करेंगे, कोई आइडिया? इफ लगा देंगे, सिंपल से बात है. ठीक है, 2 से डिवाइड हो रहा है तो काउंट कर लेना, नहीं हो रहा है तो मत करना. Count equal to count plus 1. Whenever we do counting, we increase counter by 1 always. Is that okay? आगे चलें? इसमें कोई डाउट है? Can you find out product of all the entered numbers? It will be similar to sum, except having sum as 0, we'll have product as. What will be the answer in all the cases of product? 0. Why? Because last आपने जो भी मेहनत करी होगी लास्ट नंबर आएगा और उस पर झाड़ू फेर देगा. ठीक है, कर दो यहाँ पे, ये हटा के दूसरा नंबर लिख देना. ठीक है, ओके. तुमने एक प्रोग्राम किया होगा बच्चों, पहला प्रोग्राम जो मैंने कराया होगा, राइट अ प्रोग्राम टू डू सम ऑफ 2 नंबर्स. याद है किसी को? कर सकते हो? राइट अ प्रोग्राम टू डू सम ऑफ 2 नंबर्स. इसके लिए तो हाँ बोला जा सकता है. उसी की जैसा एक प्रोग्राम है लेकिन उससे बहुत अलग है. ये वाइल का पहला प्रोग्राम है. लिखो, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर एंड डिस्प्ले sum of digits. वाइल में हम काफ़ी सारी टेक्निक सीखते हैं. जैसे अभी जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, ये एक टेक्निक है और ये टेक्निक हम सब लोग जानते हैं अनकॉन्शियसली. ये टेक्निक हम सब लोग जानते हैं अनकॉन्शियसली. कितने लोग इसको इंटरप्रेट करते हैं, ये मैं अभी आपको समझा रहा हूँ. अगर नंबर की वैल्यू 4632 है तो आंसर क्या आना चाहिए? 15. कैसे आया? बोल के बता सकता है कोई, जैसे कैलकुलेट किया आपने? कोई एक बोलो, ऐसे मेरी समझ में नहीं आया. ओके, पहले 4 + 6 10 आ गया, फिर 3 + 2 5 आ गया, फिर इन दोनों को जोड़ दिया. कोई और तरीका भी अप्लाई किया किसी ने? 4 + 6 + 3 + 2. अब एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि आप लोग तो हैं टैलेंटेड सारे के सारे, कंप्यूटर पे इतना टैलेंट है नहीं, तो कंप्यूटर से वैसे ही करेगा जैसे आपने किया. आपने एक्चुअली किया क्या? आपने किया कुछ और बोला कुछ और. क्यों किया ऐसा आपने? किसी ने भी 4 + 6 + 10 + 3 + 2 नहीं किया. आपने क्या किया? वो पार्शियली इसने करेक्ट बोला, बट पार्शियली. आपने क्या किया? 4 + 6 10 किया पहले, फिर 10 + 3 किया और उसके बाद 2 जोड़ा. इज इट द राइट मेथड? सभी ने ऐसा ही किया होगा,
क्योंकि आपने भी ऐसा नहीं किया होगा 4 + 6 + 3 + 2 और फाइनली आपके दिमाग ने बोला होगा 15, ऐसा हो नहीं सकता। आपने क्या किया, इसको सीक्वेंशियली किया। Yes, sir. अब सीक्वेंशियली इसलिए ऐसा किया क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम लोग पढ़ते हैं राइट से लेफ्ट से राइट की तरफ, हम पढ़ते हैं लेफ्ट से राइट की तरफ। कंप्यूटर का क्या होता है, कंप्यूटर दोनों तरह से रीडिंग करता है। अगर कोई टेक्स्ट है तो पढ़ेगा लेफ्ट से राइट की तरफ, याद रखना इस बात को, और कोई नंबर है तो हमेशा राइट से लेफ्ट की तरफ पढ़ेगा। इज दैट ओके? नंबर हमेशा राइट से लेफ्ट की तरफ पढ़ेगा कंप्यूटर, और टेक्स्ट को हमेशा लेफ्ट से। इसका एक एग्जांपल आप लोगों को एक्सेल में भी कभी मिला होगा। अगर किसी सेल में आप अपना नाम लिखते हैं तो वो लेफ्ट अलाइंड होता है, और उसके आगे आप अपना रोल नंबर लिखते हैं तो वो राइट अलाइंड होता है। और ये आप मैथ्स में भी करते हैं। जैसे अगर इसमें मुझे 3 जोड़ना है तो मैं 3 यहाँ लिखूंगा, यहाँ नहीं लिखूंगा। Yes, sir. मतलब ये हुआ कि कोई भी नंबर जो कॉन्स्टिट्यूट होता है वो राइट से लेफ्ट की तरफ कॉन्स्टिट्यूट होता है, राइट से लेफ्ट की तरफ कॉन्स्टिट्यूट होता है। तो अगर वो कॉन्स्टिट्यूट राइट से लेफ्ट की तरफ होगा तो वो डिसॉल्व भी राइट से लेफ्ट की तरफ होगा। जैसे तुमने जोड़ा 4 + 6 10, 10 + 3 13, 13 + 2 5, कंप्यूटर उल्टा जोड़ेगा। 2 + 3 5, 5 + 6 11, 11 + 5 4 15। कंप्यूटर राइट से लेफ्ट की तरफ जोड़ता है। ये एक नया आइडिया है जो आपको यूज़ करना है। ऑलराइट, अब कंप्यूटर करेगा कैसे इसको? कंप्यूटर यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट यूज़ करेगा। एक कॉन्सेप्ट है रिमाइंडर का और एक कॉन्सेप्ट है क्वोशंट। कंप्यूटर को एक ही प्रोसेस को रिपीट करना आता है बच्चों। तुमने तो क्या किया, वर्सेटाइल होता है माइंड, 4 प्रोसेस एक साथ कर लेते हो। कंप्यूटर एक ही काम करता है रिपीटेडली। तो आपको एक सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा इसका। वो सॉल्यूशन हर बार काम करना चाहिए। अगर वो सॉल्यूशन हर बार काम नहीं कर रहा है तो वो सॉल्यूशन कंप्यूटराइज्ड सॉल्यूशन नहीं है। अब आइडिया क्या हुआ, सबसे पहले मुझे चाहिए 2। 4 क्यों नहीं चाहिए आप सबको पता है। सबसे पहले चाहिए 2। 2 निकालना बहुत आसान होता है। किसी भी नंबर को अगर मैं 10 से डिवाइड कर दूं तो आखिरी डिजिट आ जाती है। ये आपको याद रखना पड़ेगा बहुत जगह। किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड कीजिए और रिमाइंडर निकालिए, राइट मोस्ट डिजिट आ जाएगी। कैसे? बहुत सिंपल है। 4632 को डिवाइड करिए 10 से, 463 टाइम जाएगा, 4630 आएगा और 2 आएगा। अगर ये कैलकुलेशन याद नहीं रख सकते हो, मतलब अगर निकालना नहीं चाहते हो तो याद रख लेना। 10 से डिवाइड करने में क्या होता है, कोई भी नंबर होता है वो अगर 4 डिजिट है तो 3 डिजिट ही क्वोशंट आता है उसका, ठीक है। और जो लास्ट बचता है वो क्या होता है, रिमाइंडर आ जाता है। अब ये जो 2 आ गया हमारे पास, इसको हम सम में जोड़ सकते हैं। हमारे दिमाग ने क्या कहा, 2 + 3 करो। 2 सबसे पहले डिजिट माना और सम की वैल्यू कितनी हो गई 2। फिर 3 करो तो कितना हुआ 5। फिर 6 जोड़ो तो कितना हुआ, फिर 4 जोड़ो तो कितना हुआ। तो यहाँ पे सम को ले लो, कहीं पे कितना लेते हैं सम को, जोड़ना क्या है हमको, जोड़ना क्या है बच्चों, नंबर की डिजिट। डिजिट हम निकाल चुके हैं। हाँ, yes, sir. तो सम में जो पहले 0 था, डिजिट क्या निकाली हमने 2, और सम में कितना हो गया। अब हमारे काम का 2 नहीं है क्योंकि हम 2 को यूज कर चुके हैं। नाउ व्हाट वी नीड नाउ फ्रॉम 4 6 3 we need 3. Do we know how to extract 3? 3 can only be extracted if the number will become 463. फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 3 को तब एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है क्योंकि हमने एल्गोरिथम लगाया है लास्ट डिजिट निकालने का। तो अभी नंबर है 4632, तो लास्ट डिजिट निकालोगे तो फिर से 2 निकल आएगी। 3 को अगर निकालना है तो लास्ट डिजिट इस नंबर को क्या बनाना पड़ेगा, 463 बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्या बनाना पड़ेगा, 463 बनाना पड़ेगा। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं नंबर की नई वैल्यू हो गई, नंबर की पुरानी वैल्यू बाय 10। कैसे, बाय 10 हमने निकाला था, ये 0 मैंने फालतू लिख दिया है, 463 आएगा। तो नंबर की नई वैल्यू कितनी हो गई,
463 हो गई। यहाँ से फिर ऊपर चले जाओ और 463 अब की बार लेके गए हो तुम। यहाँ से क्या लेके आए थे? 4632। ऊपर क्या लेके गए? 463। कैसे लेके गए ऊपर 463? क्योंकि हमने कोशेंट निकाल लिया। और एक काम और किया हमने, क्या किया? रिमाइंडर को सम में जोड़ दिया। जब हम 463 लेके गए तो अब की बार क्या निकलेगा डी में? सम में ऑलरेडी 2 था, 3 और जोड़ दो, कितना हो गया सम में? सम पहले 0 था, फिर 2 बना, अब 5 बना। अब की बार क्या लेके जाएंगे यहां से? 46। और अब की बार क्या निकलेगा? 5 ऑलरेडी हो रखा है और अब की बार क्या निकला है? 6। तो कितना हो गया? अब की बार क्या लेके जाएंगे? 4 लेके जाएंगे। जब 4 लेके जाएंगे ऊपर तो बच्चों 4 ही निकल आएगा। कैसे? 0 टाइम जाएगा, 4 ही निकल आएगा। 11 ऑलरेडी हो चुका है, 4 और जोड़ दिया। अब क्या लेके जाएंगे वापस? 0। क्या रिपीट करना चाहिए अब हमें? तो हमें कब तक रिपीट करना चाहिए? जब तक नंबर क्या नहीं हो जाता। लिखें इसका प्रोग्राम। सम इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू Is it throwing the same meaning what I am writing after hash? बेटा नेगेटिव नंबर भी अगर देगा तो ये चलेगा नहीं, हमें पॉजिटिव नंबर का ही सम निकालना है। हैश के बाद लिखा हुआ और वाइल के साथ लिखा हुआ, will it throw the same sense or it has some difference? There's no difference. There's no difference. ये भी 0 पे रुक जाएगा, नेगेटिव तो है नहीं, और ये भी 0 पे रुक जाएगा। तो दोनों सेम चीज़ है। दोनों में से जो भी पसंद हो वो लिख देना। नेगेटिव के लिए एब्सोल्यूट निकालना पड़ता है, फिर माइनस लगाना पड़ता है। ठीक है, पहले एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लो, मॉड जिसको आप बोलते हैं, फिर माइनस लगा दो। ओके, सबसे पहला काम, d इज इक्वल टू n mod 10। क्या कर रहे हैं इस प्रोसेस में? एक्सट्रैक्टिंग लास्ट डिजिट। ठीक है, दूसरा प्रोसेस, सम इज इक्वल टू, तो इसका डिस्क्रिप्शन क्या हुआ? कैलकुलेटिंग sum of digits। n is equal to n by 10। क्या लिखना है इसमें? reducing the number। और यहाँ पे प्रिंट सम ऑफ डिजिट्स इज सम एंड द प्रोग्राम इज ओवर।